Students, good morning to all of you. Today I am going to teach you ozonolysis. What is ozonolysis? Unsaturated hydrocarbons like alkene, alkyne, benzene, toluene, etc. When react with ozone, they form an addition product, ozonide. This ozonide on hydrolysis produce aldehyde or ketone or both. Both means aldehyde or ketone दोनों बन सकते हैं. So this whole process is known as ozonolysis. For example, ethene. Ethene on ozonolysis first gives ethene ozonoid. This is ethene ozonoid. Here what are you seeing? The double bond is broken and two new bonds from both the carbons will be appeared. One in the upper side and one in the lower side. And three oxygen atom will be added to this alkene. And this is known as ethene ozonide. Ethene ozonide. Now, this ethene ozonide on hydrolysis, and hydrolysis is carried out by two methods. One, hydrolysis in presence of zinc. And we get aldehyde or ketone or both, and such ozonolysis is known as reductive ozonolysis. Reductive ozonolysis, इसको हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं. क्यों? इसमें एल्डिहाइड कीटोन या दोनों बन सकते हैं. और दिस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ Zn. बोथ न्यू बॉन्ड विल बी ब्रोकन, सो यू विल गेट 2HCHO plus ZnO. This oxygen is taken by the zinc because zinc is more reactive towards oxygen, so it will accept this oxygen. And other type in ozonolysis is oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis, and it is carried out in presence of water only. There is no zinc. You will not get zinc in this process. So ozonolysis, you will get 2HCHO plus H2O2. This H2O2 is oxidizing agent, and it will oxidize aldehydes into carboxylic acid having same number of carbon atoms. So this HCHO plus nascent oxygen, you will get HCOOH. Ketone like acetone plus nascent oxygen, not oxidized, here no reaction. So what will happen when you get carboxylic acid and ketone on ozonolysis? Such ozonolysis is known as oxidative ozonolysis. क्यों? रिडक्टिव में आपको एल्डिहाइड कीटोन या दोनों बनते हैं, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता बिकॉज H2O2 is weak oxidizing agent, so it will not oxidize ketone, it will oxidize only aldehydes into same number of carbon atom carboxylic acid. If it is formaldehyde, you will get formic acid. If there is acetaldehyde, you will get acetic acid.
If benzaldehyde is there, you will get benzoic acid. So you will get same carbon carboxylic acid in oxidative ozonolysis. Concept clear? If you want something, you can ask anything if you are not understanding. Now, remember this thing. Another example is CH triple bond CH. Here are 3 bonds, but in ozonolysis, only 2 bonds will be broken and 2 new bonds will be formed. So this is the product of ozonolysis of acetylene. Here are 3 bonds. 2 bonds will be broken and 2 new bonds will be formed. So this is known as acetylene ozonide or ethane ozonide. Ethane ozonide. This on hydrolysis. जनरली रिडक्टिव भी आता है, ऑक्सीडेटिव बहुत कम आता है, लेकिन मैंने दोनों समझाया आपको. प्लस H2O in presence of Zn, what will happen? These new bond will be broken and you will get CHO, single bond CHO. This is known as glyoxal. This bond will not be broken, the new bonds will be broken. So this is glyoxal. Glyoxal is also known as ethane 1,2 डाइअल. मीन्स 2 एल्डिहाइड हैं, 2 कार्बन का कंपाउंड है, उसके लिए तो आया एथेन और 1 पर अल है, 2 पर अल है, तो एथेन 1,2 डाइअल. आप कहेंगे ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ डी है. एथेन 1,2 डाइअल प्लस ZNO. So this is known as reductive ozonolysis. But on oxidative ozonolysis, this glyoxal will be oxidized into aldehyde group will be oxidized into carboxylic group. So you will get 2 carboxylic group and this is known as oxalic acid. Oxalic acid. And it is carried out without zinc plus H2O. Without zinc. तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहलाता है, जिसमें एल्डिहाइड जो बनते हैं दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. वी विल नॉट फॉर aldehyde or you will get aldehyde CHO single bond CHO plus H2O2. This oxygen is taken by H2O, so this is H2O2 and it is oxidizing agent, so it will oxidize glyoxal into कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बने यानी एसिड बने ओजोनोलाइसिस में, तो समझ लीजिए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है. और एल्डिहाइड कीटोन या दोनों बने तो वो है आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. ठीक है. देखिए इसमें कोई भी कंपाउंड हो, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें, क्या बनेगा ये आप आसानी से बता सकते हैं. कैसे? मैं आपको समझाता हूँ. कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्कीन है या एल्काइन है, वो कैसे टूटेगी वो मैं आपको समझाता. देखिए सपोज देयर इज ब्यूट 1E. दिस इज ब्यूट 1E. ओजोनोलाइसिस पे क्या होगा आपको समझने की बात है, तुरंत बता देंगे. यहाँ से ये O डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ और यहाँ O जुड़ जाएगा, तो ऑन ozonolysis you will get CH3 single bond CH2 single bond CHO plus CH2O को कहते हैं SCHO. तो you will get 2 aldehydes. One is propanol and other is methanol.
and if there is a butene, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इससे क्या बनेगा, क्या टूटेगा, ये ओजोनोलिसिस पे क्या देगा, ये ओजोनोलिसिस, you will get 2 molecule of CH3CH, यानी only ethanol, तो आप ध्यान से समझना, only ethanol means it will give 2 molecules of ethanol, or if there are 2 products then they will may be different. If these are same then you will say that it gives only that. एक ही कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बने तो वहाँ आएगा ओनली एथिलीन। अब हम आपको एक और एल्कीन से बताते हैं। देखिए ये है आपकी एल्कीन, आपको तुरंत कंपाउंड पता चल जाएंगे। दिस इज एल्कीन, इट्स नेम इज 2-methyl butene। सो दिमाग में भरिए, यहाँ और यहाँ ओजोनोलिसिस पर डबल बॉन्ड टूट करके ओ आती है, तो क्या बना दी, यू विल गेट कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन भी कहते हैं इसे, और प्लस CH3CH। तो आप क्या देख रहे हैं, ऑन ओजोनोलिसिस यू विल गेट एल्डिहाइड्स, you will get aldehyde and ketone, you will get ketone only ketone। This is the alkene which gives ketone only। कौन सा कीटोन, ओ यहाँ जुड़ जाएगा, ओजोनोलिसिस। तो क्या हुआ, 2 molecules of acetone। So this is only propanone और एसीटोन। अगर ओनली एसीटोन का मतलब हो गया तो उसने 2 मॉलिक्यूल एसीटोन दिया, ओनली कभी नहीं बनता। इसमें कम से कम 2 प्रोडक्ट बनते हैं जनरली, जैसे एसिटिलीन में एक ही मॉलिक्यूल बना ग्लाइऑक्सिजन, तो वो क्या होगा, उसी के अंदर बॉन्ड बन जाए। अब हम ये बता सकते, देखिए ये तो हमने बताया आपको प्रोडक्ट क्या बना। इफ यू नो दी प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो यू कैन डिटरमाइन द एल्कीन और एल्काइन फ्रॉम विच दीज प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। वो कहेंगे आप ऐसे कैसे पता चल जाएगा। देखिए बीएससी में और कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आंसर इज गिवन दैट इट गिव्स ओनली एसीटोन। ओनली एसीटोन को करें तो क्या करेंगे, 2 एसीटोन को आप लिख दें और इस तरह से लिखें कि दोनों एसीटोन के ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए। और क्या करेंगे फिर, आप जानते हैं हमने क्या किया था, ओजोनोलिसिस पर डबल बॉन्ड हटा करके दोनों कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ दिए थे। तो हमने क्या किया, इन ऑक्सीजन को हटा दीजिए और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। दिस इज द एल्कीन व्हिच गिव्स ओनली एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस। इसका नाम क्या हो गया, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक एल्कीन थी या एक कंपाउंड ए है, उसने ओजोनोलिसिस पर ये प्रोडक्ट दिए, व्हाट इज द नेम और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एल्कीन और एल्काइन और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा एक चीज और है, अगर इसमें ग्लाइऑक्सिजन बनता है तो ग्लाइऑक्सिजन क्या है जी, ग्लाइऑक्सिजन इज दिस कंपाउंड CHO सिंगल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिजन। तो ये किस से बनता है, ये एसिटिलीन से बनता है, एसिटिलीन के ओजोनोलिसिस से, ये इसके ऑक्सीडेशन से बने। दिस इज साइक्लोब्यूट
साइक्लोब्यूट, ब्यूटा कर दीजिए क्यों, दो डबल बॉन्ड, ब्यूटा 1,3 डाई ई। और ये जो बेंजीन है, बेंजीन का इसमें 3 आपके डबल, इसको क्या कहते हैं, साइक्लो हेक्सा, हेक्सा माने 6, 1,3,5 ट्राई ई। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, तो वो भी गिलाइऑक्सल देती है। कैसे, आप समझिए, इसने क्या किया, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, ओ यहाँ जुड़ा, ओ यहाँ जुड़ा, तो एक गिलाइऑक्सल ये बन गया, एक गिलाइऑक्सल ये बन गया। यहाँ पे 3 गिलाइऑक्सल बनेंगे। इसका अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 ही आपको लेने पड़ेंगे ओजोन, और 3 मॉलिक्यूल गिलाइऑक्सल बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं गिलाइऑक्सल कौन देता है, गिलाइऑक्सल ओजोन से रिएक्शन करने पे एसिटिलीन देती है। ओजोनोलाइसिस लिख दो यहाँ, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ये देता है, ऐसे टूटेगा ओ ओ, यहाँ पे ओ ओ, यहाँ पे तोड़ेंगे इसे ऐसे ओ ओ, और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा सिंगल बॉन्ड, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो 3 मॉलिक्यूल गिलाइऑक्सल मिलते हैं, किससे, ओजोनोलाइसिस, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। और किससे होगा, O3 फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड हो जाएगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। और कौन सा है, अगर जिंक है तो रिडक्टिव, विदाउट जिंक इट इज ऑक्सीडेटिव। कंसेप्ट क्लियर। अगर ऑक्सल गिलाइऑक्सल बन रहा है, तो देखिए मैं एक कंपाउंड बता रहा हूं, उससे क्या क्या बना है, उससे एल्कीन को हमें देखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो एल्कीन क्या है जो ये कंपाउंड देंगे। तो एक क्वेश्चन है, कंपाउंड बना है ओनली प्रोपेनल, ओनली प्रोपेनल, दूसरा ओनली प्रोपेनॉन, ओनली एथिनल, ओनली एथिनल, यानी एक ही कंपाउंड बनेगा। और एक देता है एसीटोन, एसीटोन, गिलाइऑक्सल, एंड एसीटल, एसीटल है। अब समझना, ओनली एसिड प्रोपेनल, तो प्रोपेनल 2 लिखे, और कैसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रोपेनल है, दूसरा इसके नीचे लिख दिया प्रोपेनल, जिससे ऑक्सीजन पास पास आ गई। और हमने क्या किया था, एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ करके ओ जोड़ा था, अब क्या हमने ये डबल बॉन्ड हटा दिया और यहाँ जोड़ दिया। दिस इज द एल्कीन विच गिव्स ओनली प्रोपेनल। इसका नाम क्या है, हेक्स 3E, हेक्स 3E ऑन कंप्लीट ओजोनोलाइसिस गिव्स ओनली प्रोपेनल। कैसे, यहां से तोड़ो ओ ओ बनी। अब ओनली प्रोपेनॉन, ये भी प्रोपेनॉन लिख दीजिए, अभी बताया था। ओनली प्रोपेनॉन मीन्स यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन। ओनली कभी नहीं बनता, तो ओनली प्रोपेनॉन का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन। ये भी आपने ऑक्सीजन हटाया और यहां आपने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इस तरह से ये बन गया। ये एल्कीन का नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2E। अब यहां पे आइए, देखिए यहां पे क्या है, जब गिलाइऑक्सल है तो इसको ऐसे लिखा जाता है CHO सिंगल बॉन्ड CHO, क्योंकि ये दोनों और ऑक्सीजन से जुड़ेगा।
इधर लिख दिया आपने एसीटोन, और इधर लिख दिया एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अब हमने क्या किया है, गिलाई ऑक्सल को बीच में रखा क्योंकि इसके दोनों ओर ऑक्सीजन आ रहे हैं, और इनको इधर उधर रख दिया। और अब हमने क्या किया, ये यहाँ से ऑक्सीजन हटाइए, यहाँ से ऑक्सीजन हटाइए, और क्या जोड़ दें, डबल बॉन्ड। तो क्या कंपाउंड बना, दिस इज द एल्कीन। डबल बॉन्ड आएगा बेटा, ध्यान रखना, CH डबल बॉन्ड CH। क्यों, O हटाया, और O कब आता है, डबल बॉन्ड हटाने पे। तो अब O हटा के हम डबल बॉन्ड लगाए, तो क्या नाम हो गया इसका, 1 2 3 4 5 6 2 मिथाइल हेक्सा। दो डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, हेक्स से बन गया हेक्सा। और कहाँ 2 3 4 2,4 डाई। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो आप इनका निकाल। अब गिलाई ऑक्सल देखिए, जिसमें दो ऑक्सीजन है वो अकेला बन सकता है। गिलाई ऑक्सल कौन देगा, देखिए ध्यान दो, दिस इज गिलाई ऑक्सल। व्हाट यू विल डू, यू रिमूव ऑक्सीजन एंड एड 2 मोर बॉन्ड। ऑक्सीजन हटाते ही हमने 2 और बॉन्ड जोड़ दिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो एसिटिलीन गिव्स गिलाइऑक्सल, ओनली 1 मोल, उसमें दे रखा ओनली 1 मोल ऑफ गिलाइऑक्सल, तो वो एसिटिलीन होगी, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन आए। तो ये ऑक्सीजन हटा दो, 2 बॉन्ड बढ़ा दो। तो इस तरह से आप ओजोनोलिसिस को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड होगा, एल्कीन या एल्काइन, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, वो रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है, ये आप समझ जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे कठिन नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो मेरे पास आप भेज सकते हैं अपनी, मैं लिंक भेज दूंगा, और उसी लिंक से आप मुझे क्वेश्चन भेजें, मैं आपको फिर समझाऊंगा एक बार। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे